Today we will talk about the separated or disconnected set. Okay, separated. I think I need to change the pen. Separated or disconnected set. Or disconnected set. So how we will define this? है ना? A set S, which is the subset of the complex plane C, is said to be separated or disconnected separated or disconnected if there exist two sets A and B to नॉन एम्प्टी है ना ये भी लिख देते हैं यहाँ पे टू नॉन एम्प्टी disjoint. This word is also important. Two non-empty disjoint sets. Open set, okay? Open sets. And you guys are very well aware about the open set. We have discussed in the last class A and B and B, such that S contained in A union B, S with intersection A should be non-empty, and S intersection B also should be non-empty. So guys, the definition is very clear. Separations, we are talking about the separated. A set is said to be separated, है ना? एक सेट सेपरेटेड कहलाएगा if there exist two non-empty disjoint open sets. अगर उसमें अगर आपके पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स एन बी ये इंपॉर्टेंट है ना क्या इंपॉर्टेंट है नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन एम्प्टी disjoints and open sets ठीक है disjoints means A intersection B should be empty okay ये empty होना चाहिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए तो सेट एस डिसजॉइंट कहलाएगा if S contained in A union B, okay, in A union B, and S intersection A is empty and S intersection B is also empty. तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ना डिसकनेक्शन की और फॉर एग्जांपल फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस डेफिनेशन we will explore an example here. Example क्या है that as set contains the complex number z such that modulus of z minus a is less than a and modulus of z plus a is less than a. Okay, guys, there should be not and there should be or. Okay, or जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेट एस के अंदर either it should be the part of z minus a or should be the part of z plus a is less than a okay so first of all we will sketch the graph of this set कि ये किस तरीके से दिखेगा हमारे पास एक प्लेन होता है
अर्गेन प्लेन, ओके, ये हमारा रियल एक्सिस होता है ना, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर प्लस ए है, ओके, ये ए डिस्टेंस है हमारी, और इधर माइनस ए डिस्टेंस, ओके, इट्स माइनस ए, जाहिर सी बात है माइनस ए डिस्टेंस है। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस रीजन, ओके, तो हम सिंपली हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू ए, इट मींस व्हाट, इट्स a circle which is centered at A with radius A, okay, centered at A and with radius A. It's an equation of the circle in the complex plane. ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्किल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ए पे होता है, रेडियस ए होती है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस क्लास, ओके। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, सो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए is equals to a, it means what, it can be written as z minus a minus of a modulus equals to a. So it's again equation of the circle which is centered at minus a with radius a, okay. So and चलिए सर्किल ड्रॉ करते हैं, जैसी बात है ये हमारा एक सेंटर हो गया, सेंटर ए, और इस ए सेंटर को लेके हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विद दिस सेंटर, ठीक। और सिमिलरली माइनस ए डिस्टेंस का, माइनस ए डिस्टेंस को इसको लेकर के हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ओके, दीज आर टू सर्किल्स। सो ये सर्किल जो है आपका इसके लिए स्टैंड करेगा, और ये सर्किल आपका इसके लिए स्टैंड करेगा। गाइस यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि इक्वलिटी है, इक्वलिटी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर ऑन द सर्कमफ्रेंस, है ना, जो इसकी बाउंड्री पे है, उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, बस ना अंदर वाली सर्किल के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ना हम बाहर वालों की बात करते हैं। यानी कि इस इक्वेशन में सिर्फ ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो इसकी बाउंड्री पे होंगे, बट इन केस इफ दिस इक्वेशन इज रिटन, if it is not an equation, it is an inequality, okay, it's not equality, it's an equality, inequality, okay, that is modulus of z minus is less than a, it means we are talking about the complex number that lies in the circle which is at centered a with radius a inside, okay, inside the circle, and we are talking about these complex number, okay, we are which are lying here inside. if 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 it is the case, okay, और अगर ये केस ऐसे होता मॉडुलस ऑफ z माइनस इज ग्रेटर देन a, तो इसका मतलब हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जो इस सर्किल के बाहर के हैं, ना बाउंड्री के हैं ना अंदर के हैं। अगर वो लेस देन इक्वल टू होता तो इसका मतलब हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जो इसके अंदर भी है और बाउंड्री में भी है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता इसका मतलब हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जो इसके बाहर भी है और बाउंड्री में भी है। तो आप जब किसी भी रीजन को स्केच करें तो उसमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात, किस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास ये हमारा सेट एस हो गया, है ना, और ये सेट ए हो गया, इसको हमने सेट बी कंसिडर कर लिया। अगर हम गौर से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ओके, इज एम्प्टी। तो ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। सेकंड थिंग नॉन एम्प्टी है और दोनों के दोनों ओपन है, ओपन सेट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर दी ओपन सेट्स। एंड नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स, वन मोर थिंग, वो क्या है कि दोनों के दोनों डिसजॉइंट है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो अगर दो ऐसे सेट मिल गए, यहाँ पे हमें मिल गई है ना, और ये दोनों किसके इसके अंदर सेट, अगर हम दोनों का यूनियन ले तो सेट एस इसके अंदर कंप्लीटली लाई करेगा, बिल्कुल, है ना। एस बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि एस का ही स्केच है ये पूरा जो है ना स्केच एस का है। फिर से मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि एस का पोर्शन क्या है, सेट एस में क्या है। सेट एस में ये आपका जो येलो कलर में कर रहा हूँ, ये सेट एस का पार्ट होगा। ये तो सिर्फ ए हो गया आपके पास, ओके, ये बी हो गया, और इन दोनों का यूनियन, यानी कि ये पूरा येलो पार्ट आपका जो हो गया एस का हो गया, है ना। जाहिर सी बात है ये ए यूनियन बी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। और दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट भी है। एंड ए का जो इंटरसेक्शन है सेट एस के साथ में, वो भी नॉन एम्प्टी है। सिमिलरली बी का इंटरसेक्शन जो है सेट एस के साथ में, वो भी नॉन एम्प्टी है। देन यू कैन से फर्स्ट क्लास द सेट एस इज सेपरेटेड, है ना, और डिस्कनेक्टेड सेट। क्लियर है डिफिनेशन? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट तो नहीं सेपरेटेड में? No, sir. Okay, now we will move to the another definition. In the complex plane, we talk about the bounded set. Bounded set. Okay. A set S is said to be bounded. A set S is said to be bounded if every point of S lies inside some circle modulus of Z equals to R. Otherwise, it is unbounded. ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द रियल नंबर, हमने वहां पे बाउंडेड सेट की बात की। वहां पे बाउंडेड सेट एक लाइन पे होता था, है ना। तो लाइन पे जब बात करते थे कि उसके पास एक अपर बाउंड होना चाहिए, एक लोअर बाउंड होना चाहिए। अगर उसके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों है तो वो सेट बाउंडेड हो गया, है ना। Yes, sir. तो वो एक लाइन के केस में था, क्योंकि वहां पे एक इंटरवल था, लाइन था, तो वहां पे अपर बाउंड लोअर बाउंड आपको मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, बाउंडेड सेट आप सर्किल की टर्म्स में डिफाइन करेंगे कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्किल मिल गया, है ना, जिसके अंदर सारे के सारे सेट के पॉइंट्स लाई करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आर की ये कैसा सर्किल है, जरा इसको स्केच कराओ एक बार। सेंटर क्या है इसका? What about the center of this circle? 0. Sir, 0. And what about the radius? R. कैपिटल R. और इसको लेकर के एक सर्किल हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये ना बाउंड्री इस बार इसको डॉट 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 से ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सर्किल है हमारे पास ये इक्वल्स टू आर है। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इक्वलिटी है। तो हम यहाँ पे इन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बाउंड्री के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड की बात नहीं करेंगे। हमें हमें एक ऐसा सर्किल मिल जाए रेडियस आर का, कि जो सेट को जो जिस सेट को आप बाउंडेड कहना चाह रहे हैं वो इसके अंदर आ जाए पूरा का पूरा। सेट एस जो है इसके अंदर, सेट एस का जो जो भी पॉइंट है
है ना, इस सर्किल के अंदर आ जाए तो वो सेट बाउंडेड हो जाएगा। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा सर्किल नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब आप उस सेट को बाउंड नहीं कर पा रहे। इट्स अ बाउंडेड सेट। बहुत सिंपल सी चीज है ना। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए, या चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ओके, 1 भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपने 0.5 कर ले ना, 1/2 कर ले। तो ये सेंटर्ड एट 1 एंड रेडियस 0। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं और मुझे चेक करना है कि इज इट, ये जो सेट है मेरा, मैं इसको लेस देन इक्वल नहीं लेता, लेस देन 0.5 लेता हूँ। ये एक मेरे पास सेट है, मुझे चेक करना है कि इज इट बाउंडेड और नॉट। I have to check it, is it bounded or not. So first of all, I will draw it centered at 1, that is in the complex plane। 1 ही हो गया आपके पास, और 0.5, फिर 0.5 इतनी डिस्टेंस होगी, तो 0.5 को रेडियस को लेके एक सर्किल ड्रॉ करना है। क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो डॉटेड पार्ट से इसको हम स्केच करेंगे। ओके, एंड इसका मतलब हो गया कि हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला जो है ना। ये हमारा जो सेट है ना, ये जो सेट है हमारा, हमें ये बताना है कि, यानी कि ये इस सेट को डिनोट कर रहा है। ठीक, हमें बताना है कि ये बाउंडेड है या नहीं। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ऐसा सर्किल है जो इस सर्किल को अपने अंदर रख सकता है, यानी कि इसके जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये उस सर्किल के अंदर आ सकते हैं, इस सर्किल से बाहर नहीं जाएंगे। देयर एग्जिस्ट अ सर्किल, एक नहीं, इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आप 1 रेडियस के लेके एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा साहब, मेरे पास एक सर्किल बन गया, है ना। जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1 है, इसके अंदर इसके सारे पॉइंट्स लाई कर रहे नहीं कर रहे, Yes, sir. तो इससे बाहर नहीं Yes, जाएगा ना कोई, तो फर्स्ट क्लास बाउंडेड हो गया, है ना। ऐसे ही हम अनदर एग्जांपल लेते हैं बाउंडेडनेस का। रियल ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको देखो, दिमाग में तस्वीर आ जानी चाहिए, एकदम क्लियर तस्वीर आनी चाहिए कि इसका डायग्राम, इसकी पिक्चर किस तरह की दिखेगी, है ना। So, if I talk about the complex number, then in the Cartesian form, we write x plus in the form of x plus iota y. Okay, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक आर्बिट्री नंबर है। तो उसने रेस्ट्रिक्ट किया, कौन से पार्ट को रेस्ट्रिक्ट किया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के? रियल पार्ट को। उसने कहा कि रियल क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y क्या होना चाहिए, y कुछ भी हो सकता है। y को उसने फ्री छोड़ दिया इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कि आप कुछ भी हो सकता है, बट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही कह रहा है, इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. अब देखो इसका स्केच कितना आसान होता है। एक्चुअली हम चीजों को समझ के नहीं करते, तो इसलिए फंसते हैं। उसने कहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की बात हम यहां से करेंगे इस लाइन की, और y कुछ भी हो सकता है, यानी कि y ये, यानी कि हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जो इस साइड में लाई करेंगे, और ये वाला एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा उसमें। इज दैट क्लियर? How many such complex number are there? How many such complex numbers are there? Sir, infinite. Infinite in numbers. Very good. Very good. Infinite in numbers. Such complex numbers are there. हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो ये हमारा, देखो ये जब आपसे स्केच हो जाएगा ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है, और ये बाउंडेड है या नहीं है। है sir. नलायक हो, कहां से बाउंड कर पाओगे इसको बताओ। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है,
ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं समझ में आया आपको? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? एट्स अप टू इन्फिनिटी। तो इसको किसी सर्किल के अंदर पेक कर पाओगे आप? No, sir.
मीटिंग लीव करनी है क्या? पता नहीं अभी सर, क्या पता आज है। Am I audible? Hello everyone. Am I audible? यस सर। यस सर। क्या बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था? यस सर। कहाँ से डिस्कनेक्शन हुआ था? सर मीटिंग लीव हो गई थी आपकी। ओके, क्या कॉम्पैक्ट सेट से? ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई थी आपकी, कॉम्पैक्ट सेट वाली। नहीं सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर था? यस सर, कॉम्पैक्ट सेट बताना है आपको। ओके। और मुझे लगा कि मैं मीटिंग में हूँ और मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट भी होगी, पता नहीं चल पाया। ओके, compact set. A set S is said to be compact if it is bounded and closed. अगर कोई सेट क्लोज्ड होता है, बाउंडेड होता है, वो आपका कॉम्पैक्ट सेट कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वही जो हम रियल एनालिसिस में डेफिनेशन कॉम्पैक्ट सेट्स की पढ़ते हैं, वो यहाँ पर है, क्लोज्ड और बाउंडेड। तो यहाँ पे फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन, क्लोज्ड, बाउंडेड, अनबाउंडेड एंड कॉम्पैक्ट सेट। S1 एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो e टू द पावर 2 पाई के आयोटा बाई 5, इस तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें। और S2 दूसरा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें मॉडुलस, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस 1। और S3 जो है उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 1। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट आपके पास लिखे हुए हैं, और ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसको आप घर पर बैठ के सोल्व करेंगे। और टुमारो इफ यू फील, इफ यू फेस सम प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस, देन वी विल डिस्कस श्योरली टुमारो इन द क्लास। ओके, तो आज के लिए आप लोगों के पास ये है, आपको ये करना है, ये असाइनमेंट एक तरीके से, है ना। एक प्रॉपर असाइनमेंट तो मैं आप लोगों को भेजूंगा इसमें कॉम्प्लेक्स का, है, बट ये आपको अपने से करना है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, तो अब हम थोड़ा फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। रीजन्स हमने स्टडी कर ली, रीजन की बाउंडेडनेस हमने स्टडी कर ली, है ना, रीजन की कॉम्पैक्टनेस हमने स्टडी की है। अब हम मूव करेंगे फंक्शंस की तरफ। व्हाट डू मीन बाय द फंक्शंस? ये सेट आप लोग कोशिश करेंगे या नहीं? करेंगे सर। हाँ, इनको ट्राई करना, इनको स्केच करने की ट्राई करना, है ना। Now we talk about the complex function, then we will discuss its limit, complex function के limit, derivation, derivative of the complex number, then analyticity of the complex number, है ना। और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, Cauchy-Riemann equations, necessary condition for the analyticity of the complex functions, sufficient condition for the analyticity of the complex function, है ना। तो इसी तरीके से हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो नाउ वी स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब फंक्शन एफ, जो जो हम हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, उसी तरह की डेफिनेशन होती है। A function f defined on S is a rule that assigns to each z belongs to S a complex number W. The number W
is called the value of f at z and is denoted by f of z, that is f of z equals to w. तो गाइस फंक्शन हमने पहले भी स्टडी किया है। अगर आपको फंक्शन के ऊपर कुछ जानना है तो आप मेरे फंक्शंस के ऊपर कुछ वीडियोज इसमें पढ़िए, जिसमें कि रियल एनालिसिस से रिलेटेड आप कुछ वीडियोज जो है ना फंक्शंस के रिलेटेड पढ़िए, उनकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स। तो अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। वो रियल एनालिसिस के लिए ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू बात वही है। रियल में क्या होता है कि एक इनपुट होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन में एक आउटपुट होता है, वो टू डायमेंशनल होता है ना। आपने देखा होगा जो आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो टू डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई है ना, एक्स और एफ के लीजिए, वाई के लीजिए, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। एक इनपुट आप एक्स एक्सिस से देंगे, आपको वाई एक्सिस पे एक आउटपुट मिलेगा, है ना। तो ये होता है। बट इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यहाँ पे ये 4 डायमेंशनल फंक्शन होता है, 4 डायमेंशनल, है ना। यानी कि 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। आपका इनपुट क्या होता है यहाँ पे, z, जो कि z प्लेन से होता है, और आपका आउटपुट कहाँ पे आता है, w प्लेन में, है ना, w प्लेन। w प्लेन में जो आपका फंक्शन होता है w इक्वल्स टू, जो आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड जो नंबर आप डिनोट करते हैं u इक्वल्स टू आई वी की फॉर्म में करते हैं, w इक्वल्स टू u प्लस आई वी, वेयर u is the function of x and y, u is the function of x and y, है ना, और v is also function of x and y, ये भी x और y का फंक्शन है। तो ये आउटपुट है आपका डब्ल्यू प्लेन। अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू प्लेन का स्केच किस तरह का बनेगा कि इसमें यहाँ पे u होगा और यहाँ पे v होगा, ये आपका डब्ल्यू प्लेन है। इसको आउटपुट प्लेन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका z प्लेन जो होगा, यहाँ पे आपका x एक्सिस आएगा और ये y एक्सिस आएगा। 2 इनपुट देंगे आप, तो 2 इनपुट के कोरेस्पोंड में आपको तब एक आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डोमेन होगी आपकी, है ना, z, और फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट है आपका z नोट इस डोमेन का, और आपको क्या निकालना है, f ऑफ z नोट, f ऑफ z नोट। तो f ऑफ z नोट जो आपको देगा, कोई एक नंबर देगा w नोट, है ना, यानी कि z नोट यहाँ पे कोई एक वैल्यू देगा आपको, इसमें इस रीजन में, w प्लेन के रीजन में w नोट टाइप। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ये फर्क है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो कभी भी डेफिनेशन को आप गलत तरीके से नहीं लिख के आएंगे इम्तिहान में, है ना, आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन और रियल प्लेन, रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हुए चल रहा हूँ शुरू से ही, है ना। यू शुड कीप इट इन माइंड कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द रियल वैल्यूड फंक्शन एंड द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में एक इनपुट होता है x और उसके कॉरस्पॉन्ड में y की वैल्यू मिल जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनपुट है आपका z, और z जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पहले से ही 2 इनपुट चाहिए जिसको अपने अपनी वैल्यू बताने के लिए। इज इट क्लियर? तो 2 इनपुट, यस सर। और जब आउटपुट देगा तो फिर वो 2 आउटपुट देगा, तो u और एक v। तो 2 डायमेंशन इनपुट है, 2 आउटपुट है, तो इससे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन is a 2-dimensional function, 4-dimensional, I'm sorry, 4-dimensional function. For example, if we talk about the function f of z, f of z equals to 2 times z square minus का z plus का 1, है ना, for all z belongs to the set of complex plane, the set of complex number। ये एक फंक्शन है ना। z तो सिंपल x प्लस आयोटा y,
अब ये जो है ये फंक्शन है, अभी इसको कैसे लिखेंगे आप, 2 टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, प्लस 1, यू और वी की वैल्यूज निकालनी है यहाँ से। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 टाइम्स आयोटा एक्स वाई एंड माइनस का एक्स माइनस का आयोटा वाई एंड प्लस का 1। अब सेपरेट करते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी पार्ट। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन माइनस 6 देन प्लस 1 देन प्लस आयोटा 4 टाइम एक्स वाई और माइनस वाई। ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, कोई टर्म्स तो नहीं बची। ओके, सो ये आपका u कहलाएगा और ये आपका v कहलाएगा, है ना, इट्स u। और ये फर्स्ट क्लास x और y का फंक्शन है, इट्स द फंक्शन ऑफ x, y, है ना, इट्स आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, y, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है आपका। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आज हम यहीं तक रखते हैं, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू मूव some another examples of the complex valued function, then their derivative, then their analyticity. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को बड़ी आसानी से क्लियर हो गई होंगी, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना। No, sir. ओके, इसको देखिएगा, इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम, जो मैंने असाइनमेंट दिया है ना, उसको करिए, अगर वो आपको क्लियर नहीं होता देन आई विल डिस्कस श्योरली इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो एट द शेड्यूल्ड टाइम। Okay, sir. एनी अदर क्वेरी? No, sir. ओके, Thank you, sir. हेलो।